Hello everyone. Hope you all are fit and fine. This is your maths lecture and you all know that we are discussing our chapter 3 and the name of our chapter is Give and Take. Name of our chapter 3 is Give and Take. Beta, you all know that we have discussed almost all the topics related to this chapter. Only one topic is left that we are going to discuss today. Earlier we have learned in this video how to do addition and how to do subtraction and some we can say some mental math type questions, how to subtract directly, also how to add directly, that also we have learned. And here in this chapter we have also learned first time how to solve word problem. This also we have discussed, and as you know that I have provided you PDF also for doing that word problem. Right now today we have to discuss the last topic that is left of this chapter. Rest all things we have discussed in our previous videos. Okay, so let's start. Let's see what is the next topic that we have to discuss today, or I can say today's topic. What is the today's topic? Next is according to previous video, but what is today's new topic that is going to be the last topic of this chapter? Let's see. So for that topic, kindly open your maths book page number 45. Come in page number 45. But before that, first come in page number 44. This page I have given you homework in my previous video and I hope that you all have done this. This was very easy. What you have to do, only you have to add these all mentally, and then what I told you there, that you have to find this bag, you have to reach at this position through the answers that you are getting. आपको जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं उससे इस एरो के थ्रू मैप बनाते हुए इस बैग तक पहुंचना था. So I hope that you all have done, and this I have given you homework in book only. Okay, so now come in page number 45. Let's see what is given here. The topic name is card game. The topic name is card game. Okay, let's start. One day, Bubbly and Gopu were playing. Bubbly gave 3 number cards to Gopu. He arranged the card in 2 ways. Okay, but here what it is telling to us? It is telling to us that Bubbly and Gopu are 2 friends and they are playing. And what they are playing, Bubbly has given 3 cards to Gopu. Bubbly ने क्या किया? 3 cards दिए गोपू को. अब गोपू ने क्या किया? गोपू ने उन cards को arrange तो किया, but in 2 different ways. 2 different ways में arrange किया. कैसे arrange किया? Let's see. Can you arrange these cards other than these 2 ways? देखिए, you can see here क्या किया है. जो हमारा गोपू है वो क्या कर रहा है? यू कैन सी गोपू ने, देखो बबली ने जो 3 कार्ड्स दिए, 3 नंबर कार्ड्स दिए, वो कौन कौन से थे? 150, 120 एंड 30. और यू कैन से 150, 120 एंड 33 कार्ड्स थे. अब गोपू ने बेटा यहाँ पे क्या किया है? गोपू ने इन 3 कार्ड्स को अरेंज तो किया है, लेकिन अरेंज कैसे किया है? अरेंज एक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे भी उसने क्या किया है? उन कार्ड्स को डिफरेंट वेज में अरेंज किया है. डिफरेंट वेज में अरेंज किया है. कैसे? एज यू कैन सी हियर, फर्स्टली दिस गोपू हैज़ पिक्ड कार्ड नंबर 150. ओके, सबसे पहले कौन सा कार्ड उठाया उसने? 150. एंड देन ही हैज़ टेकन कार्ड नंबर 120. ठीक हो गया, 150 और 120 लिया. अब क्या किया? गोपू हैज़ केप्ट माइनस साइन कार्ड देयर. आप देख सकते हैं ना, उसने क्या किया? उसने 150 और 120 के बीच में माइनस वाला साइन वाला कार्ड रख दिया. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब आप खुद सोचिए, ये एक सम बन गया ना. 150 minus 120 is equals to
30. अब आप माइनस करेंगे तो यू कैन सी डायरेक्टली कि 150 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 30, राइट. नाउ सी सिमिलरली सेम 3 कार्ड्स हैं, देखिए 150, 120, 30. अब गोपू ने इन्हीं 3 कार्ड्स को डिफरेंट वे में अरेंज किया. कैसे डिफरेंट वे में अरेंज किया? इसने क्या किया, 150 को 150 रहने दिया और अब 30 वाले कार्ड को पहले लिख दिया और 120 वाले को बाद में. यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट व्हेन यू विल subtract 30 from 150 definitely you will get the answer 120. तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक गेम खेल रहे हैं बबली और गोपू, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट कार्ड्स ले रहे हैं, डिफरेंट नंबर कार्ड्स ले रहे हैं और उन कार्ड्स को अरेंज करने पर दे आर गेटिंग पर्टिकुलर आंसर. If you are not able to understand, no need to worry. So many times I am going to explain this. Don't worry. Let's see what is given here. Okay. Now see, Bubbly arrange them this way. अभी देखो गोपू ने तो जो कार्ड्स को अरेंज किया उसने माइनस वाला कार्ड यूज़ करके अरेंज किया, तो उसने वो क्या क्या कर पाया, उसने सबसे पहले 150 ले लिया, फिर एक बार 120 को चेंज रखा तो 30 आ गया, देन उसने 30 वाले को चेंज किया तो 120 आ गया, राइट. सिमिलरली अब सेम कार्ड्स थे 120, 30 एंड 150. इसमें क्या हुआ, इसमें बबली ने कैसे अरेंज किया, बबली ने 120 पहले ले लिया और उसने प्लस वाला कार्ड यूज़ किया, देन उसने क्या लिया, 30 ले लिया तो उसका आंसर 150 आ गया. सिमिलरली अब उसने दोबारा से क्या किया, उसने यहाँ फिर 30 लिया प्लस 120 कर दिया तो आंसर 150 आ गया, ठीक है. Now see here one exercise is given, but before going in that exercise again I am going to explain you the same. अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये तो जो बुक में दिया है इस तरीके से किया. अब इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है पहले वो कंसेप्ट समझिए. ओके, नाउ सी बेटा, दिस कार्ड गेम आई एम गोइंग टू explain you here in some different way. Okay, just see, suppose you have 3 cards and the numbers of these cards are, suppose one card is 40, one card is of 20 number and one card is of 10 number. Okay, आपके पास 3 cards हो गए 40, 20 and 10. कौन कौन से 3 cards हो गए, 40, 20 and 10. ओके, ये 40 का एक पर्टिकुलर कार्ड हो गया, 20 का एक पर्टिकुलर कार्ड हो गया और 10 का एक पर्टिकुलर कार्ड हो गया. नाउ लेट्स प्ले अ गेम. ठीक है, हम एक गेम खेलते हैं. आई एम गिविंग यू कंडीशंस. इसमें आपने क्या करना है, रूल ऑफ द गेम. सी व्हाट इज़ द रूल ऑफ द गेम. आपके पास सिर्फ 2 कार्ड्स हैं. एक कार्ड आपका किसका है, वन कार्ड इज ऑफ प्लस साइन एंड वन कार्ड इज ऑफ माइनस साइन. ओके, वन कार्ड इज ऑफ प्लस साइन एंड वन कार्ड इज ऑफ माइनस साइन. अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको ये 3 नंबर्स को प्लस और माइनस के कंडीशन में अरेंज करना है. ठीक है, अब देखिए, एज आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम. अब गेम में क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा, देखो गेम में एक तो आपके पास कार्ड्स थे और एक आपके पास क्या थे, नंबर कार्ड्स थे, और एक आपके पास कौन से कार्ड्स हो गए, साइन कार्ड्स हो गए. कौन से कार्ड हो गए, साइन कार्ड हो गए. ये आपके नंबर कार्ड्स हो गए और ये आपके साइन कार्ड्स हो गए. लेकिन किसी गेम को खेलने का कोई रूल भी तो होता है ना, इज़न्ट. अब देखिए, जो हम जो गेम खेलने वाले हैं, इतना तो आप समझ गए हैं कि ये दिस गेम इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, राइट. ये गेम हमारा मैथ से रिलेटेड है. अब ये आपको क्यों पता चला मैथ से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो क्या हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं. अब आप यहाँ से ये समझिए कि अगर हम कोई गेम खेलने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास कुछ रूल्स भी होंगे, राइट. कुछ रूल्स भी होंगे हमारे गेम को खेलने के. अब अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स देखें तो एक बात बताइए, आपने भी तो आज तक इतने सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करे, तो आपको कुछ चीज़ें पता है. जैसे हमारा क्या कहते हैं, हम एडिशन में हमारा क्या होता है बेटा, रूल नंबर 1 अगर मैं कहूँ, एडिशन में क्या होता है, एडिशन में वी कैन टेक एनी नंबर फर्स्ट. ठीक है, हम किसी भी नंबर को पहले ले सकते हैं, होता है ना, वी कैन टेक एनी नंबर फर्स्ट. एनी मीन्स वी कैन टेक ग्रेटर और स्मॉलर नंबर फर्स्ट होता है.
जब भी हम देखो, जब भी हम ऐड करते हैं, ऐड में क्या होता है, ऐड में ये होता है कि हम कोई भी नंबर पहले ले सकते हैं। क्यों? बिकॉज अगर मैं 2 + 4 करूँगी तो भी मेरा आंसर 6 आएगा, और अगर मैं 4 + 2 करूँगी तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस हमें एक चीज़ पता है कि एडिशन का एक रूल होता है क्या, कि आप कोई भी चाहे ग्रेटर नंबर पहले ले लो चाहे स्मॉलर नंबर पहले ले लो, बट आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिजिट्स को पहले या बाद में लिखने से, ग्रेटर नंबर को पहले या स्मॉलर नंबर को पहले लिखने से हमारा आंसर चेंज नहीं होता, आंसर चेंज नहीं होता। ये हमें पता है एडिशन के टाइम पे। तो ये क्या हो गया, हमारा रूल हो गया, ठीक है। तो इस गेम में हम क्या कह रहे हैं, हम इस गेम में ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें आंसर जो निकालेंगे, आंसर तो हमारा सेम रहेगा और हमें इधर के डिजिट्स चेंज कर सकते हैं। अब जो हम इधर साइड डिजिट्स लेंगे, इधर साइड मीन्स दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, तो ये जो लेफ्ट साइड जो हम डिजिट लेंगे वो डिजिट हमारे कैसे होने चाहिए, वो डिजिट हमारे ऐसे होने चाहिए कि हम उन्हीं डिजिट को चेंज करेंगे, हम जो राइट साइड वाले डिजिट को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं समझ आया, फिर से समझेंगे, जस्ट वेट। राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द रूल फॉर दिस गेम। और कौन सा गेम खेल रहे हैं हम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला गेम है हमारा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे आप कौन कौन से रूल लगेंगे, मैं अभी आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट में मैं एडिशन के रूल एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये पार्ट में मैं सब्ट्रैक्शन के रूल एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट रूल जो मैंने एडिशन के लिए बताया वो क्या बताया, कि हम कोई भी ग्रेटर और स्मॉलर नंबर कोई भी पहले ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि चाहे मैं 2 + 4 करूँगी तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, और चाहे मैं 4 + 2 करूँगी तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। पहला रूल तो ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, चाहे हम ग्रेटर नंबर पहले लें चाहे हम स्मॉलर नंबर पहले लें, हमारा आंसर सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, ओके। अब ये तो एडिशन का रूल हो गया, हम एडिशन कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस गेम का भी कोई रूल है। तो इस गेम का ये रूल है बेटा कि जब आप एडिशन वाला कार्ड यूज़ करेंगे, एडिशन वाला कार्ड यूज़ करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड वाला नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अब आपके देखो दो साइड हो गई, एक हो गई लेफ़्ट साइड, एक हो गई राइट साइड, एक क्या हो गई, राइट साइड, ठीक है। एक हो गई लेफ़्ट साइड, एक हो गई राइट साइड। तो मैंने क्या कहा, राइट साइड वाला नंबर चेंज नहीं करेंगे, राइट साइड वाला नंबर चेंज नहीं करेंगे, मतलब कि सपोज़ आपने यहाँ 4 लिया, यहाँ 2 लिया, तो आपका आंसर कितना आया, 6। अभी आपको एक चांस और मिला है इन कार्ड को रीअरेंज करने का। अब जब आप इन कार्ड को रीअरेंज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, 2 + 4 तो कर सकते हो, इन दो कार्ड को आगे पीछे तो कर सकते हो, लेकिन आप इस वाले कार्ड को कुछ छेड़खानी नहीं करोगे। यू विल नॉट टच राइट हैंड साइड कार्ड। ये क्यों नहीं टच करेंगे, ये एडिशन में कुछ नहीं होता, लेकिन अभी जो हम गेम प्ले कर रहे हैं उस गेम का ये रूल है, ठीक है। तो इस गेम के रूल के हिसाब से हम क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा हम उसे टच नहीं करेंगे। तो हमारे 3 कार्ड्स में जो हमारे 2 कार्ड्स बचेंगे सिर्फ हम उनको ही रीअरेंज करेंगे एडिशन के लिए, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के पार्ट की, ठीक है। अब देखो बेटा, सब्ट्रैक्शन का एक रूल कॉमन होता है। क्या रूल कॉमन होता है कि यू हैव टू ऑलवेज टेक ग्रेटर नंबर फर्स्ट। होता है कि नहीं होता है, हमेशा हमें कौन सा नंबर पहले लेना होता है, ग्रेटर नंबर फर्स्ट, राइट। वाई आई एम सेइंग दिस, सपोज दिस इज 10 एंड दिस इज 5, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को अगर मैं माइनस करो कहूँगी तो वट यू विल डू, 10 - 5, देन वट आंसर यू विल गेट, 5, ओके। ऐसा क्यों आया, बिकॉज हियर वी हैव टेकन ग्रेटर नंबर फर्स्ट, हमने 10 पहले ले लिया फिर हमने माइनस किया, तो वी आर गेटिंग आंसर 5। नाउ जस्ट थिंक, इंस्टेड ऑफ दिस अगर आपको मैं बोलूँ 5 - 10 करके आंसर बताइए, तो क्या आप कोई आंसर निकाल पाएंगे, इज़ इट पॉसिबल। क्या सब्ट्रैक्शन में हम फर्स्ट नंबर बड़ा स्मॉलर ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते। सब्ट्रैक्शन का ये रूल होता है कि व्हेनेवर you subtract 2 numbers or whenever you are doing subtraction between 2 numbers, first number should always be greater 1,
ठीक है, पहला नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर आप उसमें, जैसे हमारी ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, 10 - 5 इज इक्वल्स टू 5, ये बिल्कुल ठीक हो गया, बट 5 - 10 इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेम चीज़ हमारे गेम का रूल हो गया। मैंने आपको कौन कौन से रूल बताए, देखो एडिशन, अभी जो हम गेम खेल रहे हैं इसमें मैंने आपको 2 रूल एडिशन के बताए। कौन से बताए, एडिशन में एक चीज़ तो मैंने आपको बोली कि हम अगर क्या करेंगे, एडिशन में हम कोई भी डिजिट पहले ले सकते हैं, स्मॉलर भी पहले ले सकते हैं और ग्रेटर भी पहले ले सकते हैं, उससे हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो मीन्स आप ये दोनों कार्ड्स को रीअरेंज कर सकते हो, आप ये दोनों कार्ड्स को आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ मैंने आपको इस गेम का एक रूल और बताया कि यू आर नॉट अलाउड टू टच राइट हैंड साइड कार्ड्स। जो आपके राइट हैंड साइड कार्ड आप लगाओगे आप उन्हें टच नहीं करोगे। ओके, ठीक हो गया। तो ये तो हमारे एडिशन के 2 रूल हो गए। ठीक, सब्ट्रैक्शन का क्या रूल बताया मैंने आपको, जब हम अगर हम जिस टाइम पे हम गेम खेलेंगे और हम सब्ट्रैक्शन वाला कार्ड यूज़ करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन वाला कार्ड यूज़ करते समय जो हमारा रूल लगेगा वो क्या लगेगा, फर्स्ट वी हैव टू टेक ऑलवेज ग्रेटर नंबर। और ये गेम का ही रूल नहीं है, ये रूल तो हमारा सब्ट्रैक्शन में भी होता है। मैंने पहले भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में समझाया है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट वी हैव टू टेक greater number first, then only we can subtract the given numbers, right? Okay, let's come back to our game. अब मैंने आपको 3 कार्ड्स बोले थे ना, कौन कौन से कार्ड, 40, 20 एंड 10। एक बार हम पहले ये वाले कार्ड से गेम खेलते हैं, फिर आपके बुक वाले कार्ड्स में आएंगे, राइट? ओके, सो 3 कार्ड्स you were having, 40, 20 and 10. 3 cards you have, okay? Card number 1, card number 2, card number 3. पहले हम इसमें क्या खेल रहे थे, पहले हम इसमें एडिशन वाला गेम खेल लेते हैं। ओके, फर्स्ट मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू प्ले विद दीज 3 कार्ड्स एंड विद दिस बाय यूजिंग दिस कार्ड। अब आपको प्लस वाला कार्ड यूज़ करना है। ओके, अब आप को क्या करना है, ये प्लस वाला कार्ड यूज़ करना है। एंड मैं क्या कह रही हूँ, जो भी आंसर में आएगा हम उसमें राइट हैंड साइड वाले को चेंज नहीं कर सकते। तो बेटा हमको ये भी ध्यान रखना होगा इसमें कि अगर हम कोई 2 नंबर ऐड करेंगे तो हमारा जो एडिशन में हमेशा ग्रेटर आंसर आता है। तो व्हेन हियर वी विल यूज़ 2 नंबर्स तो हमें ग्रेटर आंसर आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम मान लीजिए नंबर कैसे यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमारा आई वॉन्ट टू से कि आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपका आंसर में ग्रेटर वाला कार्ड आ जाए। मीन्स लेट्स स्टार्ट द गेम। चलिए गेम शुरू कर रहे हैं। जैसे आप क्या ले लीजिए, पहले आपने ले लिया 10। अब आपने कार्ड रख दिया, कौन सा, प्लस का कार्ड रखना है। अब आपने क्या यूज़ कर लिया, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 20। ओके, अच्छा नहीं, this is 10 and 20, this is na, so I think other card I have to take, then another one we cannot take. Okay, wait, I should make it 30. wait बेटा, इस वाले कार्ड को हम 30 कर लेते हैं क्योंकि एडिशन के हिसाब से तो ये बैठेगा नहीं, 30। ठीक है, अब देखिए 3 कार्ड्स हैं, 30, 20 एंड 10। अब अगर हम लेते हैं दिस इज 10 and 20, what answer we are getting, 10 plus 20 is 30। ठीक है, अभी सही हो गया। हमने क्या लिया, 2 स्मॉलर कार्ड्स को लेकर के एक ग्रेटर कार्ड ले लिया। हमने 2 स्मॉलर कार्ड्स क्यों लिए, क्योंकि हमें एडिशन वाला कार्ड, एडिशन का कार्ड यूज़ करना। तो एडिशन के कार्ड में हम कोई भी 2 कार्ड ले सकते हैं, बट हम पहले स्मॉलर वाले कार्ड यूज़ करेंगे ताकि हमारा एडिशन में बड़ा वाला कार्ड क्या आए, आंसर में आए। बिकॉज हम बड़ा वाले कार्ड को चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ के डिजिट को, ये राइट हैंड साइड में आ गया ना, दिस इज़ राइट हैंड साइड पार्ट। गेम में मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे। एक तो हम राइट हैंड साइड वाला जो आंसर आएगा उसे कोई उसमें कार्ड को हम चेंज नहीं करेंगे, उधर से एकदम हाथ ही नहीं लगाएंगे। अभी 30 आ गया ना, अभी हम इसमें यहाँ टच ही नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ 2 कार्ड्स बचे हैं। अब कौन कौन से, 10 एंड 20। अब इन कार्ड को दोबारा से आपको अरेंज ऐसे करना है कि आपका आंसर 30 ही आ जाए। क्योंकि देखिए आंसर 30 क्यों आ जाए कह रही हूँ मैं, बिकॉज ये 30 जो है ना, दिस इज़ योर ऑलरेडी हियर, ये आपका ऑलरेडी पहले से है।
ये कार्ड यहीं रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो अब आपको कौन से कार्ड बचे हैं? आपके पास 10 और 20 कार्ड है। इन दोनों कार्ड को आप कैसे और अरेंज कर सकते हैं? वन मोर थिंग यू कैन डू, बिकॉज यू नो द रूल। आपको पता है अगर आप 20 + 30 का 20 + 10 कर देंगे तो भी यू नो दिस वेरी वेल दैट आंसर इज गोइंग टू बी सेम। 20 + 10 इज 30। हमें ये कैसे पता चला कि आंसर सेम आएगा? मैंने आपको गेम के रूल में क्या बताया था कि जब हम एडिशन वाले कार्ड से खेलेंगे तो हमें दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो कि हम राइट हैंड साइड वाली किसी भी चीज़ को टच नहीं करेंगे, जो आंसर आ गया वही आ गया, प्लस हम 2 स्मॉलर कार्ड को यूज़ करेंगे। अब इसमें हमारे 2 स्मॉलर कार्ड क्या थे? या एक 20 था, एक 10 था, बिकॉज 30 तो ग्रेटर वन है, 30 को हम टच ही नहीं करेंगे, और 30 को जिसे हम टच नहीं करेंगे उसे हम राइट हैंड साइड में रख देंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 कार्ड्स बचे, क्या? 20 और 10। अब 20 और 10 आपने एक बार अरेंज कर दिया, 10 + 20, ठीक है। अब 10 + 20 इज 30, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम आपको कह रहे हैं सेकंड चांस में आपको सेम आंसर 30 ही लाना है, क्योंकि हम राइट हैंड साइड नहीं चेंज कर सकते। तो आप कैसे लेके आएंगे? तो हमारे पास दूसरे चांस में क्या हमें क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इनकी प्लेसेस को एक्सचेंज कर दें। और एक्सचेंज क्यों कर सकते हैं? बिकॉज एडिशन में तो ये रूल होता है, अगर आप 2 + 4 करोगे तो भी आंसर 6 आएगा, 4 + 2 करोगे तो भी आंसर 6 आएगा। और हमें यहाँ पे क्या था? आंसर 30 लाना था। तो पहले जब हमने 10 + 20 किया तो भी हमारा आंसर 30 आया। अब हमने 20 + 10 कर दिया तो भी हमारा आंसर 30 आ रहा है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। नहीं समझ में आई, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। फटाफट हम दूसरे कार्ड नंबर से इसे देख लेते हैं। जस्ट वेट। नाउ सी, सपोज वी वर हैविंग 3 नंबर्स। बहुत ही ईजी बता रही हूँ, इधर ध्यान से देखिए। I have 3 cards, 5, 4 and 9. Okay, I have taken 3 cards, card 5, card 4, card 9. And what I am saying to you, I am saying to you that you have to play the game by using addition card. ओके, बाय यूजिंग एडिशन कार्ड। अब हमें एडिशन कार्ड यूज़ करना है और 3 कार्ड्स आपके पास है, 5, 4 और 9। इनका यूज़ करते हुए आपको एडिशन करना है। अब एडिशन कार्ड खेलते समय हमें इस गेम के लिए 2 रूल्स याद करने हैं। पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम राइट हैंड साइड वाले नंबर में कोई कुछ टच नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी? फर्स्ट तो राइट हैंड साइड वाले में टच नहीं कर सकते, और दूसरी बात कि हमें किस प्लस वाले में 2 स्मॉलर कार्ड्स का यूज़ करना है, 2 स्मॉलर कार्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। स्मॉलर कार्ड्स को यूज़ करेंगे, स्मॉलर कार्ड्स को। अब देखिए, ठीक है, हमें रूल पता है कि हमें एडिशन वाला कार्ड यूज़ करना है, और जब हम एडिशन वाला कार्ड यूज़ करते हैं तो जो भी हमारा राइट हैंड साइड आएगी हम उसे टच नहीं करेंगे। और राइट हैंड साइड आने से आएगी कैसे? हम इस राइट हैंड साइड में वही नंबर लिखेंगे जो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो यूज़ करने हैं वो कौन से करने हैं? स्मॉल वाले नंबर। हमें स्मॉल वाले नंबर यूज़ करने हैं। अब देखिए, अब इन रूल के हिसाब से क्या होगा? हम राइट हैंड साइड ये हो गई, ठीक है, दिस इज़ योर, सपोज दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट आ गया, ठीक हो गया। तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट में हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे ये ऐसे इक्वल टू बना देते हैं, और एक बीच में हमें, क्योंकि क्या करना है, प्लस के कार्ड से खेलना है, प्लस लिख दिया। अब आपके पास क्या है? फिर से ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 5, 4 और 9। गेम के रूल के हिसाब से जो हमें नंबर यूज़ करने हैं वो स्मॉल करने हैं। अब हमारे पास स्मॉल नंबर कौन से हैं? 5 और 4 है, बिकॉज 9 इज़ ग्रेटर नंबर हम नहीं यूज़ करेंगे। तो स्मॉलर नंबर कौन कौन सा है? 5 और 4। अब 5 और 4 को हम अरेंज कर रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट टाइम हमने बड़ी ईजिली अरेंज कर दिया। दिस इज़ 5। अब क्या बचा? फिर 4 ही बचा हमारे पास, तो हम 4 ले लेंगे, एंड इक्वल टू 9। ठीक हो गया। 5 + 4 इज़ 9, करेक्ट, ठीक हो गया। अब हमने गेम में जब हम दूसरी बार खेलने जाएंगे, गेम दूसरे चांस में जब हम खेलेंगे, तो हमें ये पता है कि हम राइट हैंड साइड वाले कार्ड को हाथ नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन? यहाँ पे जो आपका ये 9 है, ये 9 तो ऐसे ही रहेगा। समझ में आ गई बात? ये 9 वाला कार्ड ऐसे ही रहेगा, ये इक्वल टू की पोजीशन ऐसे ही रहेगी, और ये प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा। अब
अब क्या कर सकते हैं फिर से, क्योंकि हम एडिशन वाला पार्ट खेल रहे हैं तो रूल सेम ही रहेगा, राइट हैंड साइड का कोई नंबर नहीं चेंज कर सकते और आपको यूज़ स्मॉलर नंबर ही करना है। अब स्मॉलर नंबर तो आपके पास 5 और 4 है। अब जब 5 और 4 दो ही स्मॉलर नंबर हैं, दो के ही साथ गेम खेलना है और अब दूसरी बार में कार्ड अरेंज करना है, तो आपके पास क्या बच जाता है कि आप फर्स्ट पोजीशन में 4 ले लो, सेकंड पोजीशन में 5 ले लो। ओके, अब देखो 4 + 5 = 9। अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने बेटा क्या किया, हमें सिंपली क्या दिए गए थे, 3 कार्ड्स दिए गए थे, 5, 4, 9। इन 3 कार्ड्स का हमने एक गेम खेला एडिशन वाला और उस गेम के रूल हमने 2 बना लिए कि हम यूज़ सिर्फ 2 स्मॉलर कार्ड्स का करेंगे और राइट हैंड साइड में हम ग्रेटर कार्ड रख देंगे। फिर हम इन कार्ड को जब अरेंज करेंगे तो राइट हैंड साइड वाले कार्ड्स को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे और जो भी अरेंजमेंट करना होगा हमें वो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में ही करेंगे। तो दिस इज़ द कंडीशन। अब समझ में आ गया आपको कि हम जब 5 + 4 करेंगे तो भी हमारा 9 आएगा और जब हम 4 + 5 करेंगे तो भी 9 आएगा। ओके, नाउ सी, आपने एडिशन वाले गेम के रूल सीख के एडिशन तो कार्ड को अरेंज करना सीख लिया, लेकिन अभी हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाले कार्ड्स भी तो है ना, उससे भी तो गेम खेलेंगे, तो उसके रूल्स हमें पता है। उसमें सिंपली हमने आपको एक रूल बताया है कि सब्ट्रैक्शन के लिए वी हैव टू टेक ग्रेटर डिजिट फर्स्ट, ग्रेटर नंबर फर्स्ट। ओके, अभी सबसे स्मॉलर नंबर से ही शुरू करते हैं। मैंने सेम कार्ड ले लेते हैं। क्या क्या कार्ड्स थे हमारे पास इससे पहले, 5 था, 4 था एंड क्या था, 9. Okay, we were having 3 cards, 5, 4, 9. And which card we are using for playing right now? This is minus card. Okay, अब देखिए, when we are using minus card we have only one rule. ठीक है, अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई रूल यूज़ नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे एक रूल यूज़ हो रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जिसमें हमने क्या कहा था कि फॉर प्लेइंग सब्ट्रैक्शन कार्ड, बीच में कौन सा कार्ड है आपका, सब्ट्रैक्शन का कार्ड है। ओके, बीच में आपका कौन सा कार्ड है, सब्ट्रैक्शन का कार्ड है। तो हमने क्या बताया था कि फॉर प्लेइंग सब्ट्रैक्शन कार्ड यू हैव टू टेक ग्रेटर डिजिट फर्स्ट। ही एक रूल लगता है इसमें कि बस आपको ग्रेटर डिजिट जो है आप उसे फर्स्ट में लेंगे। अब 5, 4 एंड 9 में हमारी ग्रेटर डिजिट क्या है, 9 है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, 9। ठीक है, दूसरा कार्ड ही माइनस का ही है तो हम इजीली यहाँ पे भी क्या रख सकते हैं, 9। नाउ वी हैव 2 कार्ड्स, दिस इज 5 एंड दिस इज 4। नाउ योर चॉइस, आप पहले कौन सा कार्ड रखेंगे वो कार्ड रखिए, देन सब्ट्रैक्ट करके आंसर वाला कार्ड रख दीजिए। सपोज आई हैव रिटन हियर 4, मैंने कौन सा वाला कार्ड ले लिया, मैंने यहाँ पे 9 वाला कार्ड, तो मेरा परमानेंट कार्ड था, सब्ट्रैक्शन वाले में रूल है परमानेंट कार्ड। अब जो कार्ड मैं ले सकती हूँ वो क्या है, स्मॉल कार्ड क्या है, 5 या 4, तो मैंने पहले 4 वाला ले लिया। अब जब मैंने 4 वाला कार्ड ले लिया तो 9 - 4 विल बी 5, क्या आया, 5, तो दिस इज ये वाला कार्ड यहाँ आ गया। अब आपके पास नीचे वाली कंडीशन में आ जाइए, नीचे में क्या है, 9 अपनी जगह पर, फिर आपके पास 2 कार्ड बचते हैं, 5 और 4। अगर आप इस पोजीशन में 4 ले लेंगे तो ऊपर जैसा हो जाएगा, तब आपके पास चॉइस नहीं बची, आपको सिर्फ क्या लेना है, 5 लेना है। When you will take 5 here, then 9 - 5 = 4 and this is our answer. Simple. Are you getting? Subtraction में क्या रूल है, सब्ट्रैक्शन कार्ड खेलते समय हमें ग्रेटर नंबर को पहले ले लेना है, उसके बाद फिर हम जो भी नंबर्स होंगे उनको शिफ्ट करेंगे। ओके, और सब्ट्रैक्शन में एडिशन में राइट हैंड साइड के नंबर्स को परमानेंट रख देना है और स्मॉलर नंबर्स का यहाँ प्ले करना है। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम बैक इन योर पेज नंबर 45। नाउ सी बेटा, इन पेज नंबर 45 अभी आपको समझ में आ गया। इसने देखो जब सब्ट्रैक्शन वाला किया था तो 150 बड़े कार्ड को कॉमन रखा और स्मॉलर कार्ड जो इसके 30 और 120 स्मॉलर कार्ड थे उन्हें एक्सचेंज किया। सिमिलरली जब ये एडिशन वाला था तो इसने ग्रेटर कार्ड को राइट हैंड साइड में रख दिया बिना टच करे और जो 2 स्मॉलर कार्ड थे उनका यूज़ करके आंसर निकाला। नाउ इट्स योर टर्न टू प्ले। नाउ फर्स्ट सी, यू कैन सी हियर दिस इज 50, 70 एंड
20। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस कार्ड हमें खेलना है। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर राइट नाउ वी आर सॉल्विंग A1। ओके, फर्स्ट कार्ड हमें ये हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। कौन कौन से? 50, 70 एंड 20। यू कैन सी 50, 70 एंड 20। वी वर हैविंग 3 कार्ड्स। नाउ दिस इज एडिशन। एडिशन में मैंने क्या कहा था कि आप सिर्फ स्मॉलर कार्ड्स को यूज़ करेंगे और जो ग्रेटर कार्ड है उसे आप राइट हैंड साइड में लिख देंगे। राइट हैंड साइड हमारी ये वाली हो गई। ओके, अब राइट हैंड साइड में ग्रेटर कार्ड रख देते हैं। तो हमारा ग्रेटर कार्ड कौन सा है यहाँ पे? हमारा ग्रेटर कार्ड है 70। इट मीन्स हमें 70 को टच नहीं करना है, राइट। ये 70 हो गया और यहाँ पे ये भी क्या हो गया? 70 हो गया। ठीक हो गया। दिस इज ऑल्सो 70 एंड दिस इज ऑल्सो 70। अब हमारे पास 2 कार्ड्स बचे, 50, 20। अब इट्स योर चॉइस। आइदर यू कैन यूज़ फर्स्ट व्हाट, आइदर यू कैन यूज़ फर्स्ट 50, पहले 50 यूज़ कर लीजिए, फिर 20 वाला यूज़ कर लीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू कैन यूज़ फर्स्ट 20 एंड देन 50। अब ज़रा इसका एडिशन करिए। 50 + 20 इज़ ऑल्सो 70 एंड 20 + 50 इज़ ऑल्सो 70। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? नो नीड टू वरी, जस्ट लिसन हियर। इस पर फिर एक बार बताऊंगी। देखिए अभी आपके पास दोबारा अब क्या हो गया, अब सब्ट्रैक्शन वाला कार्ड। अब हमें कौन सा देखना है? देखो ये सब्ट्रैक्शन वाला कार्ड खेलना है। सब्ट्रैक्शन वाले कार्ड के लिए सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था कि टेक द ग्रेटर नंबर। सबसे पहले ग्रेटर नंबर को लिख दीजिए। ग्रेटर नंबर क्या है? 70। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? 70 और ये क्या लिख दिया? 70। ठीक है, दोनों 70 आ गए। अब आपके पास सिर्फ 2 कार्ड्स बचे, आइदर 50 और 20। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए। इफ़ यू विल यूज़ 50, अगर आप यहाँ पे 50 लिखेंगे तो 70 - 50 इज इक्वल्स टू 20। और अगर आप यहाँ पे 20 लिखेंगे तो क्या होगा? 70 - 20 इज इक्वल्स टू 50। तो इस तरीके से आपके कार्ड अरेंज होंगे। लुक हियर, यस, देखिए क्या था 50। अभी देखिए सेम चीज़ है ना, दिस इज़ विद आंसर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ विद आंसर एंड हियर यू कैन सी हमारे पास 3 कार्ड्स थे, 50, 70, 20। गेम के हिसाब से हमने क्या यूज़ किया? हमने प्लस वाले कार्ड यूज़ किए। प्लस वाले कार्ड के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया था? ये बताया था कि राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को राइट हैंड साइड में हम ग्रेटर नंबर लिख देंगे। ग्रेटर क्या है? 70 हमने लिख दिया। दिस इज़ ऑल्सो 70, दिस इज़ ऑल्सो 70। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा? स्मॉलर कार्ड्स को यूज़ करेंगे। स्मॉलर कार्ड हमारे क्या है? एक 50 है, एक 20 है। तो आपने स्मॉलर कार्ड में क्या किया? सबसे पहले वाले में 50 यूज़ कर लिया, तो 50 + 20 = 70 सही हो गया। अब दूसरे पार्ट में जब आपने खेला तो आपने क्या करा? हम राइट हैंड साइड तो हाथ नहीं लगा सकते, तो 70 ही रहेगा। अब हमने क्या करा? इनकी पोजिशंस चेंज कर दी। नाउ पहले अब क्या ले लिया? 20, सेकेंड बाद में क्या लिया? 50। सेम चीज़ माइनस वाले में देख लेते हैं। माइनस में हमारे पास 3 कार्ड्स थे, 50, 20, 70। 50, 20, 70। माइनस के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया कि वी विल ऑलवेज पुट द ग्रेटर कार्ड फर्स्ट। सबसे पहले हमने दोनों केस में ग्रेटर कार्ड रख दिए। ग्रेटर कार्ड क्यों रख दिए? क्योंकि हमारे पास माइनस वाले कार्ड थे। ठीक हो गया, ग्रेटर कार्ड रख दिया। अब कौन से कार्ड बचे? अब सिर्फ 2 कार्ड्स बचे। कौन कौन से? 50 एंड 20। नाउ अवर चॉइस। अगर हम पहले 50 लिखेंगे तो इधर 20 आ जाएगा, अगर हम पहले इधर 20 लिखेंगे तो इधर 50 आ जाएगा। इन दिस वे यू हैव टू डू। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड आई होप दैट नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर डूइंग. We are just taking 3 cards and then we are arranging them according to plus or minus. Okay. Now you can see B1 is there, 30 plus 42 and 12. So what you have to do, this is very easy. आप 42 को पहले क्या करेंगे? अच्छा wait, in that way only I will tell you. You can see B1 is 30, 42 and 12. Now look here, 30, 42 and 12. Here what we have done here, we have taken 30, 42, 12. So we have taken right hand side greater number. This I already told you what we have to take, right hand side greater number. And then only 2 numbers are left, 30 and 42. What we have done,
this 42 we have already kept in right hand side. Now we have only smaller number 30 and 12. This we have arranged. First we have taken 30, then we have written 12, then in second time we have taken 12, then we have written 30, and in this way we get the answer 42. This is the plus card, that's why we have followed these two rules. In -1 card, what we have to do? In -1 card, I told you that first you will take the greater digit. So here we have taken the greater digit first. Now only two cards are left, 30 and 12. So in first case you have taken 12 first, then you have arranged 30 here. In second case you have taken 30 here, then you have arranged 12 here. And why we have done this? Because here we have taken minus cards. Okay, so this is the thing. So I hope, students, that you all are able to understand whatever I have told you, and you will be able to solve this in your book. This only you have to solve in your book. This page number 45 you have to do in your book only. Please don't do this work in notebook, and try to understand the concept. I have explained it very clearly. Now it's your part to understand. If you are not able to understand in one time, then please rewind the video and then see again and again till you are not getting the concept. But it is so easy, you will able to get in first or second time only. No need to repeat it again. And here we have completed this chapter, give and take. Chapter number 3 is till page number 45, and here we have discussed each and every question. Now what you have to do, you have to see all the parts of this video so that you can able to solve whatever is given in this book. Okay, try to understand these questions and enjoy this video. Thank you and have a nice day ahead.